Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we will discuss about a very important poem, that is A Poison Tree by William Blake. It is very famous poem in English literature, and particularly it is taken from the Song of Experience written by William Blake. In this poem, the poet tells us about something anger, how anger works, and how jealousy and malice destroy the real happiness of human being. So, in this poem, particularly, we will discuss about a poison tree. It is very symbolic thing, symbolic poem, and it extended metaphor is being used in this poem so that you can understand. So, it is symbolic and metaphorical poem. So, before starting my lecture, it is requested to subscribe my channel so that you can receive all my videos from time to time and on daily basis. So come to the first slide. I will tell you about a little bit about the poison tree and history of the poison tree. William Blake, poet of A Poison Tree, was born on 28 November 1757. He was not only an English poet but visionary of his time as well. He was also an excellent painter and paint maker. Art is what always attracted this poet. He belonged to the era of the Romantic Age. Most of his poems depict emotion and consequences of the same. Although he was very much recognized during his time, he turned out to be a posthumous. He had always used his imagination to express the innermost emotion of human race. Since he was most the time in his own world of art, he was considered mad during his time. अब हम इसके बारे में बताएंगे है कि विलियम ब्लैक ने जो विद्या लिखी है, ये बर्न जो हुए थे 1757 को, और ये सिर्फ इंग्लिश पोइट ही नहीं थे बल्कि विजनरी पोइट भी थे, और ये पेंटर भी थे और पेंट मेकर भी थे, और ये हमेशा जो है अट्रैक्ट करते थे अपनी, और ये रोमांटिक गिरा से बिलोंग करते हैं, और जब ये जिंदा थे तो इनको लोग मेड कंसिडर करते थे कि वॉज अ मेड. सो jump to the poem. I would like to read the first four lines. I was angry with my friend. I told my wrath did end. Okay, dear student, in this first line, the poet has used the first person pronoun I. It means he is expressing his own anger. That's why he has used the word I. I was angry with my friend. I told my wrath did end. मैं अब एक दफ़ा अपने एक दोस्त के साथ नाराज़ था और मैंने उसे अपना गुस्सा या नाराज़गी ज़हर कर दी, बता दी, और इस तरह मेरा गुस्सा जो है वो ख़त्म हो गया. आई वॉज एंग्री विद माई फो. मैं एक दफ़ा जो है, अब फो दुश्मन को कहते हैं, एनिमी को, मैं अपने दुश्मन के साथ नाराज़ था. आई टोल्ड डिड नॉट, और मैंने उसे ये बताया नहीं. माई रेड डिड ग्रो, और मेरा गुस्सा जो है वो बढ़ता गया, इंक्रीज़ होता गया. अब हम इसको जो है इंग्लिश में जो है बयान करने की कोशिश करेंगे. द पोइट इज़ नॉट ओनली एक्सप्रेसिंग हिज एंगर टूवर्ड हिज फ्रेंड एज वेल एज हिज फो इन दिस स्टंजा. यानी ये अपने दोस्त को ही नहीं करता एंगर, बल्कि साथ साथ दुश्मन में भी करता है. बट ही हैज़ आल्सो डिपिक्टेड द डिफरेंट बिटवीन टू टाइप ऑफ एंगर. दो किस्म का गुस्सा. एक गुस्सा वो है जो बताकर ख़त्म हो जाता है, और दूसरा जो बताकर ख़त्म नहीं होता. He stated that when you are angry with a friend, you convince your heart to forgive him, even though you are hurt and you know that he did injustice to you. अगर वो आपको पता भी चलता है कि उसने आपके साथ इंसाफ़ी किया है, लेकिन आप अपने दिल को तसल्ली देते हैं और दिल से जो है वो नफ़रत ख़त्म कर देते हैं. You try to best to forget the past and end the feeling of vengeance इन योर हार्ट. आपके अंदर जो रिटेलिएशन के साथ होते हैं, जो बदले के साथ होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं. जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं तो क्या होता है, ऑन द अदर हैंड, व्हेन यू आर एंग्री विद द एनिमी इट टेक्स एजेस फॉर यू टू काम योर एंगर. इसको काफ़ी साल लगते हैं अपना गुस्सा ख़त्म करने के लिए. जेट द एंगर एंड द फीलिंग ऑफ वेंजेंस डू नॉट डिमिनिश. हत्ता के जो रिटेलिएशंस की या बदले की एहसासात होते हैं, जो गुस्से के, वो ख़त्म नहीं होते. इवन विद द टाइम
वक्त के साथ भी। इनफैक्ट द वेंजेंस सिंपली ग्रो, क्योंकि गुस्सा रिटेलिएशन जो होता है वो बढ़ता है। यानी सिंपल बात यह है कि गुस्सा जो है बाय द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होता है। अब हम जो है दूसरी स्टंजा की तरफ जाते हैं। एंड आई वाटर इट इन अ फियर। अब हम देखें कि वाटर यहाँ पे एज ए वर्ब यूज हुआ है और मैंने इसे खौफ में पानी देता रहा। नाइट एंड मॉर्निंग विद माई टीयर। सुबह रात को और सुबह जो है मैं अपने आंसुओं के साथ इनको पानी देता रहा इस गुस्से को, ताकि जो है ये बढ़ता रहे। एंड आई सन इट विद अ स्माइल। और मैंने इसे क्या है मुस्कुराहटों के ज़रिए जला बख्शी। एंड विद सॉफ्ट एंड डिफीटफुल विल्स। और इसके साथ साथ नर्म नाजिक और धोखाबाजी से क्या है कि मैंने इस चीज़ को जारी रखा। अब हम इसको ये देखते हैं कि दूसरे स्टंजा में जो है पोइट क्या कहता है। दिस द पोइट इज़ मेकिंग अ कन्फेशन इन दिस स्टंजा ऑफ अ पॉइजन ट्री। इट इज़ ही हु इज़ सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेट्रेड। यानी ये वो ही है, पोइट ही है जो इस नफ़रत का ज़िम्मेदार है। दैट हैज़ ग्रोन इन हिज हार्ट फॉर हिज एनिमी, कि वो अपने नफ़रत के लिए खुद ही गुस्सा जो है क्रिएट करता रहा। इट इज़ ही हु हैज़ इंक्रीज द वेंजेंस इन हिज हार्ट। ये वही पोएट ही है, ये वही किरदार ही है जो अपने दिल में वो बदले की आग को भड़काता रहा। ही हैज़ नर्चर हिज हेट्रेड विद हिज फियर। अपने खौफ के ज़रिए जो है इसको वो परवान चढ़ाता रहा। स्पेंडिंग ऑल टुगेदर, इकट्ठे घंटों गुजारते हुए। क्राइंग फॉर द इल दैट हैज़ बीन कॉज्ड हिम बाय हिज एनिमी। और अपने दुश्मन के लिए वो बुरे से बुरा सोचता रहा। ही हैज़ आल्सो नर्चर्ड द हेटेड विद हिज sarcastic smile and imagining ill and cursing his enemy to go through the same or worse suffering that has been through। अब जो है वो अपनी इस मसनूई मुस्कुराहटों से और खुशियों से और धोखाबाजी से उसको महसूस नहीं करने दिया था। इस तरह जो है उसका गुस्सा जो है वो बढ़ता गया और ये जो है ग्रो करता गया। नेक्स्ट हम लाइन्स देखते हैं। एंड इट ग्रू बोथ डे एंड नाइट। और ये एक दरख्त की शक्ल अख्तियार कर गया और ये दिन और रात जो है बढ़ता गया। टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट। और एक वक्त आता है कि उसके ऊपर जो है एक चमकता हुआ सेब जो है आ जाता है, जो कि पॉइजन ट्री का फल होता है। एंड माई फो बिहेल्ड इट शाइन। और जब मेरे बिहेल्ड होते देखने को कहते हैं, और जब मेरे दुश्मन ने इसकी चमक देखी। एंड ही न्यू दैट इट वाज माइन। और वो जानता था कि ये मेरा ही था। अब मीन टू से कि अलोरमेंट हो रही है और कैसे जो है अट्रैक्ट करता है। और यहाँ पे जो है एप्पल जो है वो अल्यूरमेंट के लिए और अट्रैक्शन के लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि इट इज़ कंसिडर इन क्रिश्चियनिटी कि एप्पल आर एसोसिएटेड विद द ट्रीज ऑफ फॉरबिडन ट्रीज। सो एप्पल इज़ यूज विद द ग्रीड एंड कस। ऐसे सिम्बोलिकली जो है ग्रीड और कस के तौर पर जो है इसको यूज़ किया गया है। अब हम इसको जो है देखते हैं इसकी लाइन्स की जो है इनकी लाइन एक्सप्लेन करने के लिए। द पोएट स्टेट्स दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज डिवेलिंग इन द सेम हेट्रेड इट हैज़ ग्रोन एवरी डे। द हेट्रेड गेव बर्थ टू एन एप्पल। द फ्रूट्स सिग्निफाई द evil that has taken birth in the heart of the poet. He stated that he has now come to the point from where he can't turn back and forget about his enemy until he does something to soothe his vengeance। अब हम जो है इसको देखते हैं कि इन लाइन्स में जो है शायर जो है वो ये कहता है कि उसकी ये नफ़रत जो है वो दिन और रात बढ़ती गई और हर रोज़ जो है ये नफ़रत बढ़ती गई और उसने फिर आखिरकार इस नफ़रत ने क्या है एक चमकता हुआ सेब पैदा कर दिया। और ये फ्रूट जो है ये बुराई को जो है सिग्निफाई करता है और उसके दिल में। और वो ये कहता है कि अब वो जिस पॉइंट पे आ गया है उस पॉइंट से वो वापस नहीं जा सकता और ना ही वो अपने दुश्मन को नहीं भुलवा सकता, क्योंकि और मेरा दुश्मन जो है जो कि अब धोखे की चमक में आ गया है और वो जानता है कि ये सेब जो है ये दरख्त मेरा है और उसको पता नहीं है कि मैं उसका दुश्मन भी हूँ। अब जो है हम लास्ट स्टंजा को देखते हैं। एंड इनटू माय गार्डन स्टोल व्हेन द नाइट हैड वेल्ड द पोल। और वो क्या है कि मेरे गार्डन के अंदर जो है दाखिल होता है और ताकि जो है इस फल को जो है वो तोड़ सके। व्हेन द नाइट हैड वेल्ड द पोल,
जब शाम को रात फैल जाती है उस वक्त के ऊपर। इन द मॉर्निंग ग्लैड आई सी, सुबह के वक्त मैं देखकर बहुत खुश होता हूँ। माई फो, मेरा जो दुश्मन है, आउट स्ट्रेचेड बीनीथ द ट्री, और वो क्या कि दरख्त के नीचे जो है बिल्कुल टांगे फैलाए मरा पड़ा है और वो ख़त्म हुआ पड़ा है। अब हम जो है इसकी देखते हैं। एंड सो द पोएट स्टेट्स द एवरी नेक्स्ट मॉर्निंग द पर्पज इज सर्व्ड। When the poet wakes up and glimpses in the garden, he sees something that relaxes his mind and calms his vengeance forever. The darkness of the night acted as a invincible cloak of the poet. Now it is a very beautiful morning. There he is, his enemy dead under the tree of hatred. He bit the poisoned apple of his vengeance. He is murdered. अब हम ये कह सकते हैं कि जो उसका जो दोस्त था, जब उसने जो है जहरीला सेब खा लिया, जब रात उफक पे आ गई, तो उसके बाद जब सुबह वो उठता है कि एक नई सुबह होती है, उस नफ़रत से जो है, उस नफ़रत के पौधे से जो है पलने वाला जो फल था वो भी क्या है कि नफ़रत आलूदा था। और वो जब देखता है सुबह आकर के वो उसका दुश्मन जो है वो मरा पड़ा है उसके दरख्त के नीचे, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। हम ये कह सकते हैं कि जेलसी और कीना परस्ती जो है इंसान की असल खुशियों को तबाह बर्बाद कर देती है। इसलिए हमें जो है दिल में बुग़्ज़ और कीना परस्ती नहीं रखनी चाहिए। वी शुड शेयर आवर ऑल फीलिंग विच वी आर थिंकिंग अबाउट आवर नियर एंड डियर्स। हम जितने भी सोचते हैं उन चीज़ों के बारे में वो हमें शेयर करनी चाहिए, ताकि हमारे दिल के अंदर जो है नफ़रत पैदा ना हो सके और इस तरह का फल जो है वो ना हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। माय contact is given, my as well as my email is given. You can also send me an email, and as well as you can write me a message so that I can reply you, and you can also write in my comment section about your questions, and as well as about your video. And if there are some good suggestion for the betterment of this channel, you can also write me, and inshallah I will do my best to correct such kind of thing, because to err is human, इंसान खता का पुतला है, and your coordination and your help and your remarks would encourage me to do something extraordinary. So thank you so much for watching my channel. और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपनी आरा से भी मुझे इतला दें, क्योंकि वक्त के साथ साथ जो है इसमें बेहतरी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे लेक्चर जो है आप डेली बेसिस पे दिया करें। आपकी सजेशन जो है वो मेरी तसल्ली और मेरे एफर्ट्स को जो है बढ़ाएंगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।